નમો લોહી સવ સાઉણમ નમો અરિહંતાણ નમો સિદ્ધાણ નમો આયરિયાણ નમો અજાયાણ નમો લોહી સવ સાઉણમ નમો અરિહંતાણ નમો સિદ્ધાણ નમો આયરિયાણ નમો અજાયાણ નમો લોહી સવ સાઉણમ નમો અરિહંતાણ નમો સિદ્ધાણ નમો આયરિયાણ નમો અજાયાણ નમો લોહી સવ સાઉણમ નમો અરિહંતાણ નમો સિદ્ધાણ નમો આયરિયાણ નમો અજાયાણ નમો લોહી સવ સાઉણમ નમો અરિહંતાણ નમો સિદ્ધાણ નમો આયરિયાણ નમો અજાયાણ નમો લોહી સવ સાઉણમ નમો અરિહંતાણ નમો સિદ્ધાણ નમો આયરિયાણ નમો અજાયાણ નમો લોહી સવ સાઉણમ નમો અરિહંતાણ નમો સિદ્ધાણ નમો આયરિયાણ નમો અજાયાણ નમો લોહી સવ સાઉણમ નમો અરિહંતાણ નમો સિદ્ધાણ નમો આયરિયાણ નમો અજાયાણ નમો લોહી સવ સાઉણમ નમો અરિહંતાણ નમો સિદ્ધાણ નમો આયરિયાણ નમો અજાયાણ નમો લોહી સવ સાઉણમ નમો અરિહંતાણ નમો સિદ્ધાણ નમો આયરિયાણ
Saunam Namo Arihantanam Namo Siddhanam Namo Ayarihanam Namo Vajayanam Namo Loe Zavasaunam Namo Arihantanam Namo Siddhanam Namo Ayarihanam Namo Vajayanam Namo Loe Zavasaunam Namo Arihantanam Namo Siddhanam Namo Ayarihanam Namo Vajayanam Namo Loe Zavasaunam Namo Arihantanam Namo Siddhanam Namo Ayarihanam Namo Vajayanam Namo Loe Zavasaunam Namo Arihantanam Namo Siddhanam Namo Ayarihanam Namo Vajayanam Namo Loe Zavasaunam Namo Arihantanam Namo Siddhanam Namo Ayarihanam Namo Vajayanam Namo Loe Zavasaunam Namo Arihantanam Namo Siddhanam Namo Ayarihanam Namo Vajayanam Namo Loe Zavasaunam Namo Arihantanam Namo Siddhanam Namo Ayarihanam Namo Vajayanam Namo Loe Zavasaunam Namo Arihantanam Namo Siddhanam Namo Ayarihanam Namo Vajayanam Namo Loe Zavasaunam Namo Arihantanam Namo Siddhanam Namo Ayarihanam Namo
Siddhanam Namo Ayariyanam Namo Vajayanam Namo Loe Savasaunam Namo Arihantanam Namo Siddhanam Namo Ayariyanam Namo Vajayanam Namo Loe Savasaunam Namo Arihantanam Namo Siddhanam Namo Ayariyanam Namo Vajayanam Namo Loe Savasaunam Namo Arihantanam Namo Siddhanam Namo Ayariyanam Namo Vajayanam Namo Loe Savasaunam Namo Arihantanam Namo Siddhanam Namo Ayariyanam Namo Vajayanam Namo Loe Savasaunam Namo Arihantanam Namo Siddhanam Namo Ayariyanam Namo Vajayanam Namo Loe Savasaunam Namo Arihantanam Namo Siddhanam Namo Ayariyanam Namo Vajayanam Namo Loe Savasaunam Namo Arihantanam Namo Siddhanam Namo Ayariyanam Namo Vajayanam Namo Loe Savasaunam Namo Arihantanam Namo Siddhanam Namo Ayariyanam Namo Vajayanam Namo Loe Savasaunam Namo Arihantanam Namo Siddhanam Namo Ayariyanam Namo Vajayanam Namo Loe Savasaunam Namo Arihantanam Namo Siddhanam Namo Ayariyanam Namo Vajayanam Namo Loe Savasaunam Namo Arihantanam Namo Siddhanam Namo Ayariyanam Namo Vajayanam Namo Loe Savasaunam Namo Arihantanam Namo Siddhanam Namo
Namo Loesavanam. Namo Arihantanam. Namo Siddhanam. Namo Arihanam. Namo Ajayanam. Namo Loesavanam. Namo Arihantanam. Namo Siddhanam. Namo Arihanam. Namo Ajayanam. Namo Loesavanam. Namo Arihantanam. Namo Siddhanam. Namo Arihanam. Namo Ajayanam. Namo Loesavanam. Namo Arihantanam. Namo Siddhanam. Namo Arihanam. Namo Ajayanam. Namo Loesavanam. Namo Arihantanam. Namo Siddhanam. Namo Arihanam. Namo Ajayanam. Namo Loesavanam. Namo Arihantanam. Namo Siddhanam. Namo Arihanam. Namo Ajayanam. Namo Loesavanam. Namo Arihantanam. Namo Siddhanam. Namo Arihanam. Namo Ajayanam. Namo Loesavanam. Namo Arihantanam. Namo Siddhanam. Namo Arihanam. Namo Ajayanam. Namo Loesavanam. Namo Arihantanam. Namo Siddhanam. Namo Arihanam. Namo Ajayanam. Namo Loesavanam. Namo Arihantanam. Namo Siddhanam. Namo Arihanam. Namo Ajayanam. Namo Loesavanam. Namo Arihantanam. Namo Siddhanam. Namo Arihanam. Namo Ajayanam. Namo Loesavanam. Namo Arihantanam. Namo Siddhanam. Namo Arihanam. Namo Ajayanam. Namo Loesavanam. Namo Arihantanam. Namo
Antanam Namo Siddhanam Namo Ayariyanam Namo Vajayanam Namo Loezavasaonam Namo Arihantanam Namo Siddhanam Namo Ayariyanam Namo Vajayanam Namo Loezavasaonam Namo Arihantanam Namo Siddhanam Namo Ayariyanam Namo Vajayanam Namo Loezavasaonam Namo Arihantanam Namo Siddhanam Namo Ayariyanam Namo Vajayanam Namo Loezavasaonam Namo Arihantanam Namo Siddhanam Namo Ayariyanam Namo Vajayanam Namo Loezavasaonam Namo Arihantanam Namo Siddhanam Namo Ayariyanam Namo Vajayanam Namo Loezavasaonam Namo Arihantanam Namo Siddhanam Namo Ayariyanam Namo Vajayanam Namo Loezavasaonam Namo Arihantanam Namo Siddhanam Namo Ayariyanam Namo Vajayanam Namo Loezavasaonam Namo Arihantanam Namo Siddhanam Namo Ayariyanam Namo Vajayanam Namo Loezavasaonam Namo Arihantanam Namo Siddhanam Namo Ayariyanam Namo Vajayanam Namo Loezavasaonam Namo Arihantanam Namo Siddhanam Namo Ayariyanam Namo Vajayanam Namo Loezavasaonam Namo Arihantanam Namo Siddhanam Namo Ayariyanam Namo Vajayanam Namo Loezavasaonam Namo Arihantanam Namo Siddhanam Namo
Namo Vajjayanam Namo Loe Savasaonam Namo Arihantanam Namo Siddhanam Namo Ayariyanam Namo Vajjayanam Namo Loe Savasaonam Namo Arihantanam Namo Siddhanam Namo Ayariyanam Namo Vajjayanam Namo Loe Savasaonam Namo Arihantanam Namo Siddhanam Namo Ayariyanam Namo Vajjayanam Namo Loe Savasaonam Namo Arihantanam Namo Siddhanam Namo Ayariyanam Namo Vajjayanam Namo Loe Savasaonam Namo Arihantanam Namo Siddhanam Namo Ayariyanam Namo Vajjayanam Namo Loe Savasaonam Namo Arihantanam Namo Siddhanam Namo Ayariyanam Namo Vajjayanam Namo Loe Savasaonam Namo Arihantanam Namo Siddhanam Namo Ayariyanam Namo Vajjayanam Namo Loe Savasaonam Namo Arihantanam Namo Siddhanam Namo Ayariyanam Namo Vajjayanam Namo Loe Savasaonam Namo Arihantanam Namo Siddhanam Namo Ayariyanam Namo Vajjayanam Namo Loe Savasaonam Namo Arihantanam Namo Siddhanam Namo Ayariyanam Namo Vajjayanam Namo Loe Savasaonam Namo Arihantanam Namo Siddhanam Namo Ayariyanam Namo Vajjayanam Namo Loe Savasaonam Namo Arihantanam Namo Siddhanam Namo Ayariyanam Namo Vajjayanam Namo Loe Savasaonam Namo Arihantanam Namo Siddhanam Namo Ayariyanam Namo Vajjayanam Namo Loe Savasaonam
Ariyantanam Namo Siddhanam Namo Ayariyanam Namo Vajayanam Namo Loe Savasaunam Namo Ariyantanam Namo Siddhanam Namo Ayariyanam Namo Vajayanam Namo Saunam Namo Ariyantanam Namo Siddhanam Namo Ayariyanam Namo Vajayanam Namo Loe Savasaunam Namo Ariyantanam Namo Siddhanam Namo Ayariyanam Namo Vajayanam Namo Loe Savasaunam Namo Ariyantanam Namo Siddhanam Namo Ayariyanam Namo Vajayanam Namo Loe Savasaunam Namo Ariyantanam Namo Siddhanam Namo Ayariyanam Namo Vajayanam Namo Loe Savasaunam Namo Ariyantanam Namo Siddhanam Namo Ayariyanam Namo Vajayanam Namo Loe Savasaunam Namo Ariyantanam Namo Siddhanam Namo Ayariyanam Namo Vajayanam Namo Loe Savasaunam Namo Ariyantanam Namo Siddhanam Namo Ayariyanam Namo Vajayanam Namo Loe Savasaunam Namo Ariyantanam Namo Siddhanam Namo Ayariyanam Namo Vajayanam Namo Loe Savasaunam Namo Ariyantanam Namo Siddhanam Namo Ayariyanam Namo Vajayanam Namo Loe Savasaunam Namo Ariyantanam Namo Siddhanam Namo Ayariyanam Namo Vajayanam Namo Loe Savasaunam Namo Ariyantanam Namo Siddhanam Namo Ayariyanam Namo Vajayanam Namo Loe Savasaunam Namo Ariyantanam
Namo Vajrayanam Namo Loesavanam Namo Arihantanam Namo Siddhanam Namo Yariyanam Namo Vajrayanam Namo Loesavanam Namo Arihantanam Namo Siddhanam Namo Yariyanam Namo Vajrayanam Namo Loesavanam Namo Arihantanam Namo Siddhanam Namo Yariyanam Namo Vajrayanam Namo Loesavanam Namo Arihantanam आते थे और छोटे छोटे गांवों को क्या करते थे, वो लूटते थे। कनेक्टिविटी नहीं थी, सूचनाएं नहीं पहुंचाई जाती थी, तो वो सारे गांव क्या हो जाते थे, लूट लिए जाते थे। तो जब कंटालिया पर इस ढंग की स्थितियां उत्पन्न हुई तो कंटालिया गांव के रक्षक ने सोजत के अंदर क्या पहुंचाया, समाचार पहुंचाया। ज्यादा दूरी भी कंटालिया और सोजत के बीच में नहीं है। तब ये बूदर जी जो बड़े जोशीले थे, कुछ सैनिकों को लेकर के क्या पहुंच गए, कंटालिया गांव के अंदर पहुंच गए। 84 डाकुओं के साथ इनके बीच में क्या हुआ, घमासान युद्ध हुआ। कहते हैं कि जो कंटालिया के अंदर युद्ध शुरू हुआ वो सीरियारी से आगे काजलवास नाम का एक छोटा सा कस्बा है, वहां पर जाकर के युद्ध की क्या हुई थी, पूर्ति हुई थी। और युद्ध के अंदर बूदर जी महाराज को क्या मिल गई, विजयश्री मिल गई। युद्ध के अंदर वो जीत गए। परंतु वहां पर एक ऐसी घटना घटी कि जिस घटना के चलते उनके जीवन का परिवर्तन हुआ यूं कि उन 84 डाकुओं में से एक डाकू ने अपनी तलवार को लेकर के एक घोड़े की गर्दन पर क्या कर दिया, तलवार को चला दिया। घोड़े का गर्दन अलग और घोड़े का शरीर क्या हो गया, अलग हो गया। कई बार क्या होता है, जीवों की चेतना थोड़ी रह जाती है, तो जब चेतना थोड़ी रह जाती है तो शरीर और बिखरा हुआ अंग क्या होता है, बहुत चटपटाता है। तो उधर उस घोड़े को छटपटाता देख करके बूदर जी महाराज का दिल क्या हो गया, पिघल गया कि ऐसा हिंसा के काम में मुझे क्या है, नहीं रहना है। इतना वैराग्य भाव जग गया कि घर आए, सोजत में जो राज सैनिक पद पर थे उससे क्या ले ली उन्होंने, निवृत्ति ले ली, रिटायरमेंट हो गए, त्याग पत्र दे दिया और एकांकी रहते हुए सदगुरु की खोज में क्या है वो निकल गए। मन में वैराग्य का भाव था और एक समय क्या हो गए, वो पोथिया पंथ परंपरा के अंदर क्या हो गए, दीक्षित हो गए। ध्यान रखना, स्थानकवासी परंपरा का वैसे उदय तो शुरू से था, परंतु बीच में बहुत सारी परिस्थितियां क्या थी, विपरीत थी। तो बूदर जी महाराज के उस समय में पोथिया पंथ की क्या चलती थी, परंपरा चलती थी, जिसे जति धर्म भी कहा जाता है। यतियों का धर्म उस समय चलता था। तो पोथिया पंथ के अंदर ये क्या हो गए, दीक्षित हो गए। परंतु दीक्षा लेने के बाद में भी जो इनकी प्यास थी, वो प्यास वहां पर क्या है, नहीं बुझ रही थी। तो सदगुरु की खोज में क्या है, निकल पड़े। और इन्हें किनकी शरण मिली, पूज्य आचार्य श्री धन्ना जी महाराज की इनको क्या मिली, शरण मिली। धन्ना जी महाराज से इन्हें पूरे ज्ञान की प्राप्ति हुई और धन्ना जी महाराज की वाणी से प्रभावित होकर के इन्होंने वापस क्या ली, शुद्ध आरती दीक्षा को इन्होंने अंगीकार किया। बड़े विद्वान थे, ज्ञान ध्यान में ये सामर्थ्यवान थे। इंदौर के आसपास इनकी क्या हुई थी, वापस शुद्ध आरती दीक्षा हुई। दीक्षा होने के बाद में अपने गुरु के सानिध्य में रहते हुए यह आचार्य बूदर जी महाराज धर्म की क्या करने लग गए, प्रभावना करने लगे। उसी समय में जोधपुर के अंदर
एक खीवसी जी भंडारी हुआ करते थे। वो जैन धर्म के पक्के अनुयायी और जोधपुर दरबार के बड़े विश्वस्त क्या थे, वो सामंत थे। इनकी इतनी छाप थी कि दिल्ली का बादशाह भी इन्हें क्या देता था, सम्मान देता था। यह खीवसी जी भंडारी का इतना प्रभाव था कि दिल्ली के बादशाह ने अपना दुशाला यानी कि जो अंग वस्त्र होता था वो अंग वस्त्र दे करके उनको क्या किया था, सम्मानित किया था। देखिए भूधर जी महाराज का आगम ज्ञान कितना मजबूत था और धर्म की प्रभावना कितनी मजबूत थी, वो उदाहरण आपको सुनाता हूं। खीवसी जी भंडारी का बार बार बादशाह दिल्ली के अंदर इनका आना जाना होने लगा। एक बार बादशाह की एक बेटी थी और उसकी बेटी कवारीपन के अंदर क्या हो गई, गर्भवती हो गई। बिना शादी किए उसकी बेटी क्या हो गई, गर्भवती हो गई। समय रहता नहीं है और बातें कभी भी छुपती नहीं है। यह खबर राजा को और सारी प्रजाओं को क्या है, पहुंचने लग गई। यानी कि उसकी वी माता यानी कि सौतेली माता ने क्या कर दी, इस बात को उड़ा दिया कि उसकी राजा की बादशाह की बेटी क्या है, कुलंकिनी है, ये व्यभिचारिणी है और ये क्या हो गई है, गर्भवती हो गई है। अब बादशाह को ये बात सुनाई गई तो बादशाह का क्रोध क्या हो गया, 7वें आसमान पर चढ़ गया और बादशाह ने एक ही बात कही कि ये कलंकिनी क्या नहीं है, काम की नहीं है, इसको क्या दिया जाए, मृत्यु दंड की सजा सुनाई जाए। राजा ने, बादशाह ने ना आव देखा ना ताव और उसको क्या सुना दिया, मृत्यु दंड सुना दिया। परंतु वो कन्या अपने पिता और बादशाह के पास आई और हाथ जोड़ करके निवेदन किया कि जहां पना मैंने ऐसा कोई भी कुकर्म नहीं किया, मुझे लगता है कोई ना कोई बहुत बड़ा क्या हो रहा है मेरे साथ, षड्यंत्र हो रहा है। मेरे पुनवानी में कमजोरी है जिसकी वजह से इस कलंक का भार में क्या है, उठा रही हो। परंतु मैं अभी भी क्या हूं, शुद्ध हूं, पवित्र हूं। मैंने किसी भी तरह का क्या नहीं सेवन किया है, पाप सेवन नहीं किया। बादशाह थोड़े चिंतित हुए कि कहीं मेरे हाथ से अन्याय ना हो जाए। सारे उनके जितने पीर पैगंबर थे सभी को बुलाया और उनसे कहा कि धर्मशास्त्र के अंदर ऐसा कोई वर्णन है कि बिना पुरुष के संयोग से कोई कन्या गर्भवती होती हो। सारे पीर पैगंबरों ने धर्म किताबों को टंटोला परंतु उन्हें क्या नहीं मिला, ऐसा कोई तरह का उदाहरण नहीं मिला। उन्होंने हाथ जोड़ करके माफी मांग ली कि धर्म के अंदर ऐसा क्या है, कोई तरह का वर्णन नहीं है। ये समाचार किसको मिले, खीवसी जी भंडारी को मिले। वो राजा के पास गए और राजा से निवेदन किया कि महाराज जब तक इसकी जड़ तक हम नहीं पहुंच जाए तब तक आप इसके मृत्यु दंड का समय को क्या कीजिए, एक्सटेंड कीजिए। सजा आपको देनी है तो दीजिए परंतु थोड़े समय बाद में क्या है, इसको सजा दीजिए। मैं चाहता हूं कि आपके हाथों से कोई तरह का क्या नहीं होवे, अन्याय नहीं होवे। खीवसी जी भंडारी उस कन्या के पास गए। ध्यान रखना, बादशाह की बेगम, बादशाहों की बेटियों के पास कोई भी जाकर के नहीं मिल सकता था, परंतु ये जैन समाज की ये विशेषता थी, जैन समाज के चरित्र की ये विशेषता थी कि वो चाहे बेगमों के जाकर मिले या ठकुरानियों से जाकर के मिले, उन्हें क्या मिलती थी, छूट मिलती थी। वो जाकर के उस कन्या से पूछा क्या तूने कोई तरह का पाप किया हो तो मुझे बता दे। परंतु उस कन्या के हाव भाव और चेहरा देख करके उसे महसूस हो गया कि ये कन्या क्या है, निर्दोष है। अब खीवसी जी भंडारी चारों तरफ घूमने लगे, कैसे ना कैसे इस कन्या को क्या है, बचाया जाए। और ये पहुंचते पहुंचते विचरण करते हुए कहां पहुंच गए, इंदौर। और इंदौर में पहले से क्या है, धन्ना जी महाराज के शिष्य भूधर जी महाराज क्या कर रहे थे, विचरण कर रहे थे। और सहसा मुनि को देख करके अपना शीश उन्होंने क्या है, महात्मा के चरणों में सौंप दिया। उन्हें विश्वास था कि चाहे पूरे दुनिया के पास समाधान मिले या नहीं मिले, परंतु जैन संतों के पास हर समस्या का क्या मिल जाता है, समाधान मिल जाता है। और उन्होंने निवेदन किया कि भगवान अगर आप कृपा करके मेरे प्रश्नों का अगर जवाब देते हैं
तो एक पंचेंद्रिय जीव की क्या हो सकती है? रक्षा हो सकती है। भूधर जी महाराज ने पूछा कि बताओ भाई, जैसी मेरी बुद्धि होगी, जैसी मेरी क्षमता होगी, उसके अनुरूप में क्या करूंगा? समाधान करने का प्रयास करूंगा। उसने प्रश्न पूछा, क्या बिना पुरुष के संयोग से कोई स्त्री गर्भवती हो सकती है क्या? मुझे इसका शास्त्रीय प्रमाण भी क्या है? चाहिए। भूधर जी महाराज आगम के अभ्यासी थे, आगम ग्रंथों के बहुत बड़े ज्ञाता थे। ये बात आप भी ध्यान में रखना। भूधर जी महाराज ने शास्त्र का विवेचन करते हुए, शास्त्र को दोहन करते हुए बताया कि स्थानांग सूत्र के अंदर गर्भवती होने के 5 कारण बताए। कितने? शास्त्र की बात भूधर जी महाराज खींवसी जी भंडारी को बता रहे हैं कि गर्भवती होने के कुल 5 कारण जैन आगमों के अंदर स्थानांग सूत्र के अंदर क्या है? बताया गया है। सबसे पहला कारण, जिस पानी के अंदर पुरुष ने स्नान किया हो और उस समय अगर पुरुष के पुद्गल उसमें तिर रहे हो और उसी समय अगर कंवारी कन्या आकर के उसमें स्नान करे तो भी वो क्या रह सकती है? गर्भवती हो सकती है। यह कौन सी बात है बताएं आपको? जैन आगमों की बात आप बता रहा हूं और इस पॉइंट्स को नोट भी करके रखना। पहला कारण, जिस पानी के अंदर पुरुष ने स्नान किया हो और जहां पर उसके पुद्गल तिरे हो, अगर वहां पर कंवारी कन्या आकर के स्नान करे तो भी वो क्या हो सकती है? गर्भवती हो सकती है। और दूसरा कारण, यदि कोई स्त्री रजस्वला होकर के बिना कपड़ों के खुले में अगर सो रही हो और अगर ऊपर से कोई पुद्गल आकर के गिरे तो भी वो क्या हो सकती है? गर्भवती हो सकती है। ये दूसरा कारण उनको क्या है? खींवसी जी भंडारी को बताया। खींवसी जी भंडारी का मन क्या हो रहा था? बड़ा आश्वस्त हो रहा था कि गुरु महाराज से मुझे क्या मिल रहा है? समाधान मिल रहा है। तीसरा कारण, पुद्गलों से सने हुए कपड़े अगर कोई स्त्री अगर धारण करती है, अगर वो पुद्गल अगर उसके गर्भ से संस्पर्शित हो जाता है तो भी वो नारी क्या हो सकती है? गर्भवती हो सकती है। ये 3 कारण भूधर जी महाराज ने बताया। और चौथा कारण, देवताओं के संयोग से भी क्या हो सकता है? गर्भ ठहर सकता है। कई देवताओं के आशीर्वाद से या दैवीय कारण से भी स्त्री क्या हो सकती है? गर्भवती हो सकती है। और 5वां कारण बताया कि पुरुष और स्त्री के संयोग से क्या होता है? गर्भ को धारण किया जाता है। ये 5 कारण भूधर जी महाराज ने उसे बताया। और उसके बाद में यह भी बताया कि जो गर्भ पुरुष के बगैर होता है, पुरुष और स्त्री के बिना जो गर्भ को धारण किया जाता है, वो सारे बालक क्या होते हैं? बिना हड्डी वाले होते हैं। बिना पुरुष के संयोग से अगर कोई नारी गर्भवती होती है तो उसका बालक या उसकी बालिका बिना हड्डी वाली होती है और उसका शरीर रुई की तरह क्या हो जाता है? कोमल और लुंदे की तरह हो जाता है। वो नारी भले ही गर्भवती होती है परंतु समय आने के बाद में उसके शरीर में हड्डियां नहीं होती है और वो बालक क्या हो जाता है? मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। परंतु पुरुष और स्त्री किसी के संयोग से जिस बालक का जन्म होता है उसके शरीर में क्या होती है? हड्डियां होती है। भूधर जी महाराज को क्या हो गया? विश्वास हो गया। देखिए जैन आगमों की महिमा को भी आप देख लीजिए कि जैन आगमों के अंदर कितनी गूढ़ और कितनी गंभीर बातें क्या है बताई गई है। खींवसी जी भंडारी को शास्त्रीय प्रमाण मिल गया और ये प्रमाण लेकर के वो सीधे कहां पहुंचे? बादशाह के पास पहुंचे और बादशाह से बताया कि मेरे गुरु महाराज ने क्या बताए? ये 5 कारण बताए। बादशाह को विश्वास नहीं हो रहा था परंतु फिर भी अपनी बेटी को बचाव के लिए बादशाह भी क्या थे? लालाई थे। बादशाह ने कहा कि जब तक ये प्रसवित नहीं हो जाती है तब तक क्या बनाए रखो? इसके ऊपर नजर बनाए रखो और एक सुरक्षा घेरा बनाए रखो। समय आने के बाद में वो एक संतान को जन्म देती है और जो मुनिश्री ने बात बताई थी वही क्या होती है? वहां पर सच होती है कि बालक ने जन्म तो लिया
परंतु उसके शरीर में क्या नहीं था, एक भी हड्डियां नहीं थी। और वो बालक क्या हो गया, मृत्यु को प्राप्त हो गया। देखिए बादशाह भी क्या हो गया, प्रभावित हो गया कि जैन धर्म का ज्ञान इतना मजबूत है कि जो लौकिक से भी अलौकिक बातें भी क्या है वहां पर प्रस्तुत हो जाती है। खीसी जी भंडारी का बादशाह ने और उस कन्या ने और उस कन्या की मां ने बहुत बहुत आभार दिया, परंतु खीसी जी भंडारी कहते हैं कि अगर सचमुच में अगर आपको आभार देना है तो किसको देवे, बूदर जी महाराज को देवे। उन्हीं की वजह से आज इस कन्या की क्या हो पाई है, रक्षा हो पाई है। बूदर जी महाराज के दर्शन के लिए बादशाह क्या होने लगे, लालायित होने लगे। और खीसी जी भंडारी को कहा कि जाकर के मुनिश्री को निवेदन करे कि दिल्ली के अंदर वो पधारे और दिल्ली के अंदर क्या करे, वो चातुर्मास करे। बादशाह के निवेदन पर, खीसी जी भंडारी के निवेदन पर बूदर जी महाराज कहां पर पधारे, दिल्ली के अंदर पधारे। और दिल्ली में ठाट बाट के साथ उनका क्या हुआ था, चातुर्मास हुआ था। कभी कोई सुनने में आया कि किसी बादशाह ने जैन संतों का चातुर्मास करवाया हो, कहीं भी सुनने को नहीं आता है। परंतु बूदर जी महाराज का चौमासा किसने करवाया, बादशाह ने मुख्य भूमिका निभाते हुए करवाया। चौमासा संपन्न होने के बाद में बूदर जी महाराज विचरण करते हुए, मेरता होते हुए आनंदपुर कालू के गांव में पधारते हैं। ये सारे गांव मारवाड़ के प्रसिद्ध गांव हैं। आनंदपुर कालू धर्म का दृढ़ गांव था। कालू गांव के बाहर रेतीली क्या होती थी, पहले धरती खूब होती थी। तो उस रेतीली धरती के अंदर जाकर के बूदर जी महाराज क्या लेते थे, आतापना लेते थे। उसी आनंदपुर कालू गांव के अंदर एक रामा नाम का जाट व्यक्ति रहता था। ध्यान रखना, यह प्रसंग सुनना कि महापुरुषों ने कितनी तकलीफें को झेल करके धर्म की नींवों को लगाई है। उसी आनंदपुर कालू गांव के अंदर रामा नाम का एक जाट व्यक्ति रहता था। उसके मन में क्या था कि ये जो संत जो यहां पर भरी गर्मी में धूप सेवन कर रहे हैं, ये कोई ना कोई चमत्कार क्या है करने वाले संत है। क्योंकि उस समय लोगों की ये धारणाएं होती थी कि जैन संत क्या करते हैं, बारिश को रोक देते हैं। और इसके पीछे का कारण क्या है, सेठ साहूकार। अगर बारिश रुक जाएगी तो सोने चांदी अनाज की कीमत क्या है, बढ़ जाती है। और सेठों को क्या होती है, कमाई दुगुनी होती है। इसलिए ये क्या करते हैं, सेठ लोग अपने गुरुओं को बुलाते हैं और इनके गुरु सूर्य से क्या करते हैं, तपस्या करते हैं और बारिश को ये क्या करते हैं, रोकते हैं। इस ढंग से उनकी क्या थी, गलत धारणा थी। और उसी धारणा के चलते वो रामा जाट ने क्या किया, बूदर जी महाराज के पैर को उसने पकड़ा। पहले से बालू रेत पर होने से शरीर तप रहा था, परंतु उसने पैर पकड़ करके पास में ही कांटे का क्या था, वृक्ष था, बबूल के कांटे जो बड़े तीखे तीखे होते हैं, उनका शरीर ऐसे खींच करके कहां पर ले गया, बबूल के कांटे पर ऊपर ले जा करके फेंक दिया। पूरे बूदर जी महाराज के शरीर में क्या चुभ गए, कांटे ही कांटे उनके शरीर में चुभ गए। गुस्सा इतना तेज था उस रामा का। और उसी गुस्से में पास में ही एक फरसी पड़ी हुई थी। फरसी का मतलब धरती को खोदने वाला एक साधन। उस फरसी को उठा करके जोर से एक चोट उनके सर पर उसने क्या है, लगा दी। और फरसी की चोट लगे तो अच्छे अच्छे की खोपड़ी क्या हो जाए, फट जाती है। उनकी खोपड़ी में भी क्या लग गई, एक गंभीर चोट लग गई और रक्त की धारा बहने लगी। ये दृश्य, ये घटना उसी कालू गांव का एक व्यक्ति देख लेता है, पुरोहित व्यक्ति देख लेता है और गांव में जाकर के चारों तरफ ये बात कह देता है कि बूदर जी महाराज को जाट ने मार दिया, बूदर जी महाराज को रामा जाट ने क्या कर दिया, मार दिया। ये सुनते ही पूरे जैन समाज क्या हो गए थे, वहां जागरूक हो गए और उस रामा जाट को हवलदार ने पकड़ ले जा करके क्या कर दिया, जेल में बंद कर दिया। और उसकी खूब क्या करी, पिटाई करनी शुरू कर दी कि एक निर्दोष, किसी को कष्ट नहीं देने वाले साधुओं को क्या किया, उसने परेशान किया। थोड़े समय के बाद में बूदर जी महाराज क्या हुए, ठीक हुए। और उनके कानों में क्या पड़ी, खबर पड़ी
कि जिसने तकलीफ दी, जिसने चोट पहुंचाई, उसको जेल में डाल करके क्या किया जाता है? रोजाना मार पीट किया जाता है। जैन समाज की सभा को बुलाई और बुला करके गुरु महाराज ने आदेश दिया कि जब तक रामा जाट को छोड़ा नहीं जाता है तब तक मेरे अन्न जल के क्या रहेंगे? पचखांड रहेंगे। ये होती है महापुरुषों की क्षमा की भावना कि जिसने मारा, जिसने पीटा, उसके प्रति भी क्या रखा? क्षमा की भावना रखा। रामा जाट को छोड़ दिया गया और रामा जाट भूधर जी महाराज के चरणों में गिर करके क्या मांगता है? माफी मांगता है। और समय आने के बाद में मांस का, 7 व्यसनों का पूरा उसने क्या कर दिया? त्याग कर दिया। इस तरह से भूधर जी महाराज का पूरा जीवन क्या था? एक पवित्र जीवन था। और उन्होंने धर्म की क्या की है? बहुत अपूर्व उन्होंने प्रभावना की है। आखिर में उनका देवलोक गमन मेरता सिटी के अंदर उनका क्या हुआ था? देवलोक गमन हुआ था। विक्रम संवत 1803 यानी कि लगभग 275 ईयर्स पहले उनका क्या हुआ? विजयदशमी के दिन उनका देवलोक गमन हुआ। अब मैं आपको बताता हूं कि उनका उपकार मारवाड़ पर कैसे है। उनके कुल 9 चेले प्रमुख हुए। कितने? 9 शिष्य उनके प्रमुख हुए, जिनमें से 4 शिष्यों की जाहो जलाली खूब हुई। पहले शिष्य नारायण जी महाराज थे। कुछ के चेलों की आगे परंपरा नहीं चली, परंतु कुछ की परंपरा चली। दूसरे नंबर पर उनके 5वें शिष्य थे आचार्य सम्राट श्री रघुनाथ जी महाराज, जो कहां के थे? सोजत सिटी के थे। और उन्हीं की वंशावली में कौन आते हैं? उनकी वंशावली में कौन आते हैं? कौन? मर्दर केसरी जी महाराज की परंपरा, पूज्य श्री रूपचंद जी महाराज की परंपरा और हम सभी की पीढ़ी परंपरा क्या आती है? उन्हीं की परंपरा में आती है। और 13 पंथ की परंपरा भी किस में से आती है? उन्हीं रघुनाथ जी महाराज की परंपरा से आती है। उनके तीसरे शिष्य थे पूज्य श्री जैत सिंह जी महाराज, जो बड़े ठाकुर परिवार से थे और बड़े शक्तिशाली व्यक्ति थे। उन्होंने क्या लिया? नियम ले लिया कि गुरुदेव मुझे क्या दो? कभी भी शिष्य नहीं बनाने के क्या देवे? पचखान देवे। उन्होंने कभी भी जीवन में क्या नहीं बनाया? चेला नहीं बनाया। चौथे शिष्य कौन थे? जयमल जी महाराज। चौथे शिष्य कौन हुए? भूधर जी महाराज के जयमल जी महाराज हुए। और उनकी भी पीढ़ी आज क्या है? बहुत आगे तक चल रही है। खूब सारी साध्वी और खूब सारे संत भी क्या है? उनके मौजूद है। सतगुरु का पदार्पण हो रहा है, सभी खड़े हो जाएं। माइक बंद है। दया पालो सा। तो भूधर जी महाराज के चौथे चेले कौन हुए? पूज्य श्री जयमल जी महाराज हुए। उनकी भी पीढ़ी क्या है? बहुत आगे तक चल रही है। और 5वें चेले कौन हुए? कुशलो जी महाराज, जिनकी वंशावली में कौन आते हैं? पता है आपको? कुशलो जी महाराज की परंपरा में कौन आते हैं? आचार्य श्री हस्तिमल जी महाराज, आचार्य श्री हीरा मुनि जी महाराज। ये सारी परंपरा किस में से आती है?
कुशलो जी महाराज की परंपरा से आते हैं, तो इनके टोटल 9 शिष्य तो प्रदान हुए, परंतु 4 चेलों की जाहो जलाली क्या हुई, खूब हुई। चारों ने खूब नाम और यश कमाया। आज मारवाड़ की जितनी भी परंपरा है वो किसकी है, किसकी है? और हमारे गॉडफादर कहे तो भी क्या है, कोई औचित्य नहीं होगा। भूधर जी महाराज हमारे लिए क्या है, गॉडफादर की तरह है कि उनकी पीढ़ी क्या बढ़ी, खूब आगे बढ़ी। तो कवि लोग कहते हैं धन रघुपति धन जयतसी धन जयमल ने कुशलेश, चारों शिष्य भूधर तना चावा देश विदेश। ये क्या कहती है, एक दोहा है जो इनके व्यक्तित्व को क्या है, दर्शाता है। और एक विशेष बात और है कि इन्हीं के प्रभाव से, इन्हीं के पुण्य प्रताप से सोजत सिटी का जो थानक है, सोजत सिटी का जो कोट के मोहल्ले का स्थानक कहलाता है, वो भूधर जी महाराज की कृपा से ही जैन समाज को क्या हुआ था, प्राप्त हुआ था। आज भी शिलालेख के माध्यम से क्या है, सोजत के थानक के अंदर लिखा हुआ है। और भूधर जी महाराज की इतनी कृपा मारवाड़ पर है कि भूलने से भी क्या है, नहीं भूला जा सकता है। तो इस तरह से भूधर जी महाराज के जीवन पर हमने क्या डाला, प्रकाश डाला। और अब हम बढ़ते हैं उपाध्याय श्री मूल मुनि जी महाराज के प्रति। हालांकि समय की अनुकूलता कम है, महापुरुषों के जीवन की जो विशेष विशेष बातें वो आपको बताता हूं। उपाध्याय श्री मूल मुनि जी महाराज की दीक्षा जैन दिवाकर श्री चौतमल जी महाराज के हाथों से हुई। किनके हाथों से? जैन दिवाकर श्री चौतमल जी महाराज के हाथों से हुई। जोधपुर के अंदर जैन दिवाकर श्री चौतमल जी महाराज का प्रवचन चल रहा था। तो प्रवचन के अंदर उन्होंने पूछा कि कौन यहां पर है जो दीक्षा लेने के लिए तैयार है। तो उस समय ये मूल मुनि जी महाराज क्या थे, लगभग बहुत छोटी उम्र के थे। इन्होंने हाथ खड़ा करके क्या बताया कि मैं क्या लूंगा, दीक्षा लूंगा। ऐसा संयोग बना कि वो क्या हो गए, जैन धर्म के मार्ग पर बढ़ गए। ये वास्तव में गादिया परिवार से थे और पाली इनकी क्या थी, जन्म भूमि थी। और जैन दिवाकर जी महाराज के ये मुंडित और सबसे ज्यादा उम्र वाले क्या बने, संत बने। अभी पिछले साल ही इनकी क्या हुआ था, देवलोक गमन हुआ। कोटा के अंदर काफी लंबे समय तक ये क्या रहे, स्थिर वास के रूप में रहे। तो इनका क्या रहा, श्रमण संघ पर बहुत बड़ा उपकार रहा। आज उनकी क्या है, हम पहली पुण्यतिथि मना रहे हैं। और ये मानव सेवा का भी खूब काम क्या है, करवाते थे। कई सारे श्रावक आते थे, धन रख करके जाते थे। और कई सारे जो कमजोर परिस्थिति वाले श्रावक रहते थे उनको क्या पहुंचाते थे, वो धन पहुंचाते थे। श्रावक लोग चिट्ठियां पहुंचाते थे और अपने आप उनका क्या हो जाता था, काम हो जाता था। सधर्मी सेवा का उन्होंने क्या किया, बहुत अच्छा और सुंदर काम उन्होंने किया था। और आज इसी कड़ी में दूसरी पुण्यतिथि हम मनाने जा रहे हैं। श्रमण संघ के महामंत्री ज्ञान सिंधु पूज्य श्री सौभाग्य मुनि जी महाराज सब कुमुद, आज उनकी क्या मना रहे हैं, हम दूसरी पुण्यतिथि मना रहे हैं। इनकी विशेष विशेष बातें बताता हूं। इनकी माता ने भी क्या ली थी, इनकी मां ने भी दीक्षा लिया और इनकी बहन ने भी क्या लिया, संयम के मार्ग पर अग्रसर हुए। ये मेवाड़ संघ शिरोमणि पूज्य श्री अंबालाल जी महाराज साहब के क्या थे, शिष्य थे। खूब अच्छे विद्वान थे। और पूना सम्मेलन 1987 जब पूना का सम्मेलन हुआ, तब उस समय पूज्य श्री रूप मुनि जी महाराज साहब के निवेदन पर, पूज्य श्री रूप मुनि जी महाराज साहब के सद प्रयासों से सौभाग्य मुनि जी महाराज को क्या बनाया गया था, श्रमण संघ का महामंत्री बनाया गया था। रूप मुनि जी महाराज और सौभाग्य मुनि जी महाराज की मित्रता, दोस्ती की मिसाल आज भी दी जाती है। ये दोनों क्या थे, बहुत जिगरी दोस्त के रूप में थे। तो इस तरह से ये श्रमण संघ के महामंत्री पद पर रहते हुए जैन धर्म की इन्होंने खूब प्रभावना की। और पूज्य श्री घासीलाल जी महाराज की जो टीका सहित आगम थे, काफी आगमों का इन्होंने पुनर्प्रकाशन भी करवाया। कविताएं लिखनी इनकी खूब शौक वाला काम था। खूब सारे इन्होंने मुक्तक, गीत, कविताओं की इन्होंने क्या की है, रचना की है। और बहुत अच्छे विद्वान भी ये क्या है, रहे हुए हैं।
इस तरह से सौभाग्य मुनि जी महाराज को 2 साल पहले उदयपुर के अंदर क्या हुआ, इनका अंतिम संस्कार और दाह संस्कार होकर के इनका देवलोक गमन हुआ था। हालांकि बॉम्बे के अंदर इनका क्या हुआ, देवलोक गमन हो गया था। काफी वेदनाएं अंतिम समय में क्या थी, इनके साथ में चल रही थी। उस समय ज्यादा बीमार तो मदन मुनि जी महाराज थे। लग रहा था कि मदन मुनि जी महाराज देवलोक हो जाएंगे, परंतु देवलोक कौन हो गए, सौभाग्य मुनि जी महाराज हो गए। तो श्रमण संघ के लिए क्या थी, बहुत बड़ी क्षति का वो समय था। परंतु फिर भी उन्होंने जो संगठन का जो काम किया वो आज भी क्या है, स्मरणीय है। इसी तरह और आज हम मनाने जा रहे हैं हमारे श्रमण संघ के भावी अनुशास्ता युवाचार्य प्रवर श्री महेंद्र ऋषि जी महाराज साहब की 56वीं जन्म जयंती। हालांकि ये सारे महापुरुषों की तिथियां आगे पीछे हैं, परंतु सामूहिक रूप से आज हम क्या कर रहे हैं, उनके गुणगान कर रहे हैं। श्रमण संघ के युवाचार्य श्री महेंद्र ऋषि जी महाराज साहब का जन्म पूना के पास में एक चाकण नाम का गांव है, वहां पर इनका जन्म हुआ। स्वार्थी लाल जी भटेवड़ा और लीलाबाई जी भटेवड़ा इनके माता पिता रहे। और श्रमण संघ के दूसरे आचार्य पूज्य श्री आनंद ऋषि जी महाराज के कर कमलों से इनकी क्या हुई थी, दीक्षा हुई थी। उन्हीं के हाथों से मुंडित हुए और उन्हीं के हाथों से क्या हुए, पढ़ लिख करके ये होशियार हुए। और 1981 के अंदर 14 वर्ष की छोटी उम्र के अंदर इनकी क्या हुई थी, जैन भागवती दीक्षा हुई। इनकी विद्वता को देखते हुए आगम रत्नाकर, प्रज्ञा महर्षि, विदर्भ शिरोमणि, जिन शासन प्रभावक और श्रमण संघ के मंत्री पद पर ये क्या रहे, अपनी सेवाएं देते रहे। 2015 जब इंदौर का सम्मेलन था, तब इंदौर सम्मेलन में कई सारे संत युवाचार्य बनने में क्या है, लगे हुए थे। उस समय हमारे महेंद्र ऋषि जी महाराज साहब लगभग जनवरी का समय था, जेतारण पावन धाम के अंदर क्या है, इनका पदार्पण हुआ था। काफी लंबा और उग्र विहार करके ये वहां पर पधारे थे। और पधारने के पीछे का कारण था बड़े महाराज का आदेश। रूपचंद जी महाराज ने एक ही बात कहा कि ठने अठे आवणो ही आवणो है। बड़े महाराज का आदेश कौन टाल सकता है। आप बड़े बड़े आचार्य भी रूपमुनि जी महाराज का आदेश नहीं टालते थे। वो तो क्या थे, उस समय मंत्री पद पर थे। 40-40, 35-35 किलोमीटर का लंबा विहार करके ठीक पुण्यतिथि के एक दिन पहले क्या है, वो वहां पर पहुंचे थे। शाम का समय था और बाबूजी से उन्होंने निवेदन किया कि भगवान अगर आप रो हाथ मारा माथा माते रहीला तो मने संग्रह संचालन और संग्रही सेवा करना कहीं मिलीला मौको मिलीला। बड़े महाराज बहुत पारखी व्यक्तित्व वाले थे, बहुत दूरदृष्टा वाले थे। वो आज की देख करके नहीं, आने वाले 50 साल की देख करके क्या करते थे, वो काम करते थे। पूना सम्मेलन के सभी लोग साक्षी होंगे कि खूब सारा उस समय क्या था, ऊपर नीचे का काम होता था। और जब ऐसा प्रसंग आता तो सब किसको याद करते हैं, किसको याद करते हैं? संघ के अंदर कभी भी ऊपर नीचे हो जाता है तो लोग किसके पास जाते थे, किसके पास, के रूप जी महाराज का नहीं चाला, सब कहीं हो जाइला, निपटारा हो जाइला। तो उस समय बड़े महाराज ने एक ही बात कही कि थारो नाक कही है, युवाचार्य जी का नाक क्या है, थोड़ा लंबा है, थारो नाक बहुत लंबो है। बड़े महाराज ने क्या कहा, थारो नाक बहुत लंबो है और थारो नाक लंबो थारो भविष्य बतावे, कहीं बतावे, भविष्य बतावे। और मैंने आशा ही नहीं, पूरा विश्वास है कि तू ही आगे जाइने कहीं बनीला, आचार्य बनीला। और अगर तू कहे तो कल सुबह थारी कहीं कर दूं। बड़े महाराज ने ये शब्द कहे कि अगर तू कहता है तो कल सुबह तेरा क्या कर दूं, मैं राज तिलक कर दो, श्रमण संघ का युवाचार्य घोषित कर दो। तो युवाचार्य महेंद्र ऋषि जी महाराज साहब ने क्या कहा कि बाबूजी आप मुख वो निकल गई बात, वही मारे वास्ते कही है। सबसे बड़ो आशीर्वाद है तो श्रमण संघ के युवाचार्य का जब निर्णय का जब प्रश्न आया तब महेंद्र ऋषि जी महाराज साहब का क्या हुआ, चयन हुआ। इसके पीछे भी किसकी भूमिका थी, हमारे मारवाड़ी परंपरा की सबसे ज्यादा भूमिका वहां पर थी। स्वास्थ्य के कारण बड़े महाराज नहीं पधार पाए, परंतु प्रतिनिधि के तौर पर
मर्दर केसी जी महाराज के प्रतिनिधि के तौर पर और पूरे मारवाड़ के प्रतिनिधि के तौर पर और रूपचंद जी महाराज के प्रवर्तक के प्रतिनिधि के तौर पर 3-3 पदों की वो प्रतिनिधि के तौर पर पूज्य श्री सुकन मुनि जी महाराज ने क्या दिया था, वहां पर अपना पूरा समर्थन युवाचार्य श्री महेंद्र ऋषि जी महाराज साहब के लिए दिया था। और देखिए उनका समर्थन, उनका आशीर्वाद आज हमें देखने को मिल रहा है कि हमारे श्रमण संघ के युवाचार्य जी खूब सारा क्या कर रहे हैं, धर्म की प्रभाव ना कर रहे हैं, ऐसे ऐसे क्षेत्रों में जाकर के क्या कर रहे हैं, वो विचरण करते हुए जिन वाणी की क्या कर रहे हैं, प्रभाव ना कर रहे हैं। हमें भी उनकी सेवा करने का क्या मिला था, खूब अवसर मिला। 2018 में जब सोजत सिटी के अंदर 550 से ज्यादा वर्षी तप का पारने का प्रसंग चल रहा था, तब उस समय निकटता के साथ उनके साथ रहने का हमें क्या मिला, गुरुदेव श्री मर्दर केसी जी महाराज साहब का शताब्दी वर्ष और रूप मुनि जी महाराज का हीरक जयंती वर्ष का वो क्या था, प्रसंग था। लगभग 80 से 90 उस समय क्या थे, साधु साध्वी वहां पर उपस्थित थे और उस समय युवाचार्य बनकर के ये क्या थे, वहां पर पधारे थे। और गुरुदेव ने क्या दिया था, उनको आदर की चादर ओढ़ा करके इनका क्या किया था, सम्मान किया था। और हमारे युवाचार्य जी इतने सरल है कि जिसकी कोई हद नहीं है, विद्वान भी है, सरल भी है और समय आने पर सटीक निर्णय लेने में भी क्षमतावान है। इसके कई सारे प्रसंग मेरे को क्या है, हमने साथ में रहते हुए घटनाएं देखी है। सोजत का प्रसंग हो चाहे नाडोल में विचरण करने का प्रसंग हो, नाडोल में जब हम विचरण कर रहे थे तो हमारा सबका विहार एक साथ हो रहा था। नाडोल से लेकर के सादड़ी तक विचरण क्या हुआ, साथ साथ में हुआ। सुबह सुबह हम सारे छोटे संत क्या है, उनके साथ ही विहार करते थे। तो विहार में क्या करें, तो हम सभी ने निवेदन किया कि युवाचार्य भगवंत, आपका कंठ क्या है, बहुत सुंदर है, आप बहुत अच्छे अच्छे क्या गाते हैं, गीत गाते हैं, तो हमें क्या सुनाए, आप गीत सुनाए। देखिए हम जैसे छोटे संत भी निवेदन करा तो उन्होंने जहां हमने विहार शुरू किया वहां से लेकर के जब अगले गांव तक नहीं पहुंचे, पूरे रास्ते उन्होंने क्या सुनाए हम सभी को, बहुत अलग अलग प्रकार के धार्मिक गीतों को क्या है हमें सुनाया। तो हमें बहुत सात्विक गर्व है कि हमारे श्रमण संघ की भागडोर एक ऐसे सशक्त कंधों पर है जिनको देख करके हमारा हृदय क्या होता है, प्रफुल्लित होता है। उन्हें चाहे कितना भी उकसा दो, कभी भी उनको क्या नहीं आता है, क्रोध कभी भी हमने उनके जीवन में देखा ही नहीं। इतने धीमे, इतने सरल और इतने सक्षम युवाचार्य को पाकर के आज श्रमण संघ क्या हो गया, धन्य हो गया। तो आज उनका ये जन्म दिवस पर हम गुणगान कर रहे हैं। मैं यही निवेदन और यही मंगल कामना करता हूं कि हमारे युवाचार्य जी दीर्घजीवी बने और श्रमण संघ का क्या करे, वो खूब सशक्त होकर के संचालन करे और समस्त श्रमण संघीय साधु साध्वी बहुत लंबे वर्ष तक उनका क्या देखे, नेतृत्व देखे। ऐसी हम हार्दिक हार्दिक क्या करते हैं, मंगल कामना और अनुमोदना करते हैं। आज और क्या क्या प्रसंग है, आज 2-3 और क्या है प्रसंग है। 2 अक्टूबर का ये दिन है और 2 अक्टूबर को किसकी जयंती मनाते हो आप सब, किसकी, गांधी जयंती मनाते हो। और गांधी जी किसके अनुयायी थे, किसके अनुयायी थे, अहिंसा के वो क्या थे, अनुयायी थे। और अहिंसा के पुरोधा कौन थे, हमारे भगवान महावीर। तो वो भी क्या हो गए, जैन धर्म के अनुयायी हो गए। और इसी के साथ एक और प्रसंग यहाँ पर बताता हूं कि हमारे गुरुदेव श्री अमृत मुनि जी महाराज साहब की बड़ी बहन, जो वर्तमान में श्रमण संघ की उप प्रवर्तनी पद पर रहते हुए राजमती जी महाराज बनकर के खूब धर्म की क्या कर रहे हैं, वो प्रभावना कर रहे हैं। किशनगढ़ मदनगंज में उनका चौमासा चल रहा है और आज उनका 64वां जन्म दिवस है और वहां पर उनके संयम का 50वां वर्ष क्या है, आज के दिन मनाया जा रहा है। और हम ये मंगल कामना करते हैं कि उनका संयम जीवन खूब पल्लवित होवे, गुरुदेव का खूब वो नाम रोशन करे। गुरुदेव श्री मर्दर केसी जी महाराज के मुखारविंद से बगड़ी नगर के अंदर उनकी क्या हुई थी, दीक्षा हुई थी। और विशेष बात आज ये भी है कि इस उम्र के अंदर खूब ज्ञान ध्यान भी वो क्या है कर रहे हैं। और आज ही के दिन उन्हें मदनगंज में क्या मिली, पीएचडी की उपाधि से आज उन्हें क्या है, नवाजा गया है। तो हमें बहुत गर्व होता है
कि 64 वर्ष की उम्र में बीए एमए करने के बाद में पीएचडी करने वाली शायद ये प्रथम महासाध्वी क्या है होंगी। तो हम ये मंगल कामना करते हैं कि उनका जीवन भी क्या बने, सुंदर और पवित्र, और सभी के लिए क्या बने, प्रेरणादायी बने। तो इस तरह से आज खूब सारे महापुरुषों की हमने क्या किए, गुणगान किए, और उसके साथ नौकार महामंत्र का हमने क्या किया है, 1 घंटे तक जाप किया है। और ये शुक्ल पक्ष का ये जो दिन चल रहा है, इसमें जितना हम जाप करते हैं उतना ही वो क्या बनता है, फलदायी बनता है। अगला रविवार पूर्णिमा के दिन आएगा, जिस दिन क्या है, शरद पूर्णिमा है। वो दिन भी बड़ा क्या माना जाता है, पवित्र माना जाता है। उस दिन हमें और जाप करने, क्या करने हैं, और जाप करने। तैयार हो करने के लिए, तैयार हो कि नहीं? हाँ, उस दिन हमें जाप करना है, नमो थूनम का क्या करना है, हमें जाप करना है। उस दिन भी कौन सा जाप होगा, स जोड़े नमो थूनम का क्या होगा, जाप होगा। तो ध्यान रखना, जो भी आज बिना जोड़े के साथ आए हैं, उस अगले रविवार को पूर्णिमा के दिन नमो थूणम का स जोड़े जाप होगा, और पूरे 15 दिन की एक बड़ी मंगलिक का भी क्या होगा, आयोजन होगा। तो उस सारे प्रसंग पर उपस्थित होने का क्या रखें, उस प्रसंग पर उपस्थित होने का लक्ष्य रखें, और जितने भाई लोग हैं वो सफेद पोशाक के अंदर आवे, और जितनी बहनें हैं वो चुंदड़ी के वेश के अंदर क्या है, उपस्थित होवे। और सजोड़े जाप की कुछ व्यवस्थाएं भी बनाई गई है। गूगल फॉर्म के माध्यम से सभी को अपना नाम रजिस्ट्रेशन करवाना है, और उसके अलावा जो 2:15 बजे से पहले आएगा उन्हीं की प्रॉपर बैठने की क्या की जाएगी, व्यवस्था की जाएगी। जो बाद में आएंगे उनके बैठने की क्या नहीं होगी, अनुकूल व्यवस्थाएं नहीं होगी। तो इस तरह से बहुत सारा कार्यक्रम क्या है, आज यहाँ पर उपस्थित हुआ है। और इसी प्रसंग पर हमारी एक भावना है कि हमारे, देखो बीच में बहन बैठी है, सेंटा होगा, सामायिक है। हाँ, इसी बीच एक कविता सुनाने के लिए मैं आमंत्रित करता हूं कवि शशिकर डॉक्टर खटका राजस्थानी जी को कि वे मंच पर आए और आज के इस सुंदर प्रसंग पर एक कविता को सुना करके आज की सभा को संबोधित करावे। आप राष्ट्रीय स्तर के कवि हैं और 75 वर्ष की लंबी आपकी आयु है, परंतु इस उम्र के अंदर भी खूब सारी कविताएं आप क्या है, लिखते रहते हैं, और अपने समय के जाने माने आप क्या रहे हैं, कवि रहे हुए हैं। और कई सारे साधु संतों की आपने क्या की है, भरपूर सेवाएं की है। आप भी पिछले 1 महीने से गुरुदेव की सेवा में क्या है, यहाँ पर उपस्थित हैं। तो मंच पर आए और एक कविता सुना करके आज की सभा को आगे बढ़ाएं। परम श्रद्धेय अत्र विराजित तपस्वी सम्राट ज्योतिषाचार्य श्रद्धेय अमृत मुनि जी महाराज साहब, अखिलेश मुनि जी महाराज साहब, श्रद्धेय डॉक्टर वर्ण मुनि जी महाराज साहब, आपका आदेश हुआ है। मैं तो आपके आदेश को आदेश नहीं बल्कि अध्यादेश मानता हूं, और आदेश भले ही न चले लेकिन अध्यादेश तो चलता ही है। आज का ये पुनीत दिन है, और जितने चाहे मूल मुनि जी महाराज हो, चाहे वह महेंद्र ऋषि जी महाराज हो, चाहे मधुकर जी महाराज हो, मुझे सबकी सेवा में, जैसे मैं यहाँ आप 1 महीने से देख रहे हैं मैं रह रहा हूं, उनके पास भी मुझे रहने का सौभाग्य मिला, और सौभाग्य मुनि जी के पास भी रहा हूं। ये सब मेरे कोई 1000 वर्ष के पुण्यों का प्रसाद है। किसी संत के दर्शन होना यह हमारे 100 वर्ष के पुण्यों को दर्शाता है, लेकिन गुरु के दर्शन होना, उनसे चरण स्पर्श होना,
ये हमारे 1000 वर्ष के पुण्यों का प्रदर्शन है। आप सब गुरु जी के चरण शरण में आए हैं। आज संतों की बात आपने की। दो महान इस देश के राजपुरुष हुए हैं, एक महात्मा गांधी और दूसरे लाल बहादुर शास्त्री। मेरी बात आप सुन रहे हैं। मैं वैसे आपको कहूंगा तो नहीं कि मेरी कविता पे आप ताली बजाओ, क्योंकि ताली आप बजाओगे पश्चाताप मुझे करना पड़ेगा। कई बार ऐसा हुआ है कि मैं कहता हूं भाई आप ताली बजाओ, गुरुदेव की तरफ से मैं आज्ञा लेता हूं, उसके बाद मैं तेला कर लूंगा। और मैंने तेली कविता पहले सुनाई आपको। वैसा नहीं करूंगा, करूंगा तो पूरा ही करूंगा। आप सुन रहे हैं, 4 पंक्तियां दे रहा हूं। सुबह करता हूं, शाम करता हूं, सुबह करता हूं, शाम करता हूं, इस जिंदगी का हर क्षण आपके नाम करता हूं। संत हो या कोई भी हो महात्मा, मैं जिंदगी के हर क्षणों में आपको प्रणाम करता हूं। मैं जिंदगी के हर क्षण में आपको प्रणाम करता हूं। अभी ये महात्मा गांधी की जयंती है। अभी कुछ दिनों पहले, या ये सोचे कि 1 साल हुआ पहले गांधी जयंती आई थी। गांधी जी को पुष्प समर्पित करने के लिए मैं सवेरे सवेरे गांधी जी के पास गया। ध्यान से सुनना आप। किसके पास गया? सुबह सुबह अकेला गांधी जी के पास गया और मैंने कहा, गांधी जी बापू आपको प्रणाम। बोले, खटका राजस्थानी कितने दिनों बाद आया है? मैंने कहा, बापू 1 साल बाद आया हूं, क्योंकि आपकी जयंती 1 साल बाद ही आती है, बाकी तो मैं जो है समय मिल नहीं पाता। बोले, लोग मुझको याद क्यों करते हैं? मैंने कहा, बापू आपने देश को आजादी दिलाई। तू मानता है ना? आप भी मानते हैं गांधी जी का बड़ा सहयोग रहा है आजादी के आंदोलन में। तो बोल, देश को आजादी किसने दिलाई? मैंने कहा, बापू आपने दिलाई। तो मैं यहां देख 70 वर्ष से एक लाठी लेकर के और यहां खड़ा हूं। अब बता मुझे, क्या महाराणा प्रताप ने आजादी दिलाई? मैंने कहा, आजादी तो नहीं दिलाई, लेकिन उन्होंने आजादी के लिए काम बहुत किया है। तो वो तो घोड़े पर बैठे हैं और मेरे को यहां खड़ा कर रखा है। क्या फिर बोले, अब बता मुझे, क्या आजादी लक्ष्मीबाई ने दिलाई? मैंने कहा, नहीं बापू आजादी तो आपने दिलाई है। तो फिर वो घोड़े पर बैठी हुई है, मैं आज भी खड़ा हूं। अब बता मुझे, क्या जो लोग घोड़े, शिवाजी ने दिलाई? बोले, नहीं बापू वो तो लड़ाई लड़े थे, आजादी तो आपने दिलाई है। तो फिर वो घोड़े पर बैठे, मुझे क्यों नहीं घोड़े पर बिठाया? कुछ प्रबंध कर, मेरे लिए कोई घोड़ा लेके आ। थक गया हूं मैं 70 वर्ष में खड़ा खड़ा। बोले, बापू कल ही व्यवस्था करता हूं। ध्यान से सुनना, मेरी बात को समझना। बहुत मैं अगले दिन शहर गांव में गया, लोगों से मिला। मैंने कहा, यार रात कल सुबह महात्मा गांधी मुझसे मिले थे और मुझे कह रहे कि मैं थक गया हूं, मेरे लिए घोड़े की व्यवस्था करो। बोले, अच्छा गांधी जी ने तुमसे बात की? मैं, क्यों, गांधी जी मुझसे बात नहीं कर सकते? सच बोल, क्या गांधी जी ने तुमसे बात की? मैंने कहा, हाँ हाँ गांधी जी ने मुझसे बात की कि मैं थक गया हूं, मेरे लिए घोड़े की व्यवस्था करो। तो बोले, यार उस गांव के बड़े नेताजी थे। अब गांधी जी के तो नेताजी होंगे, भक्त, कांग्रेस दल के थे वो नाम। मैंने कहा, यार नेताजी गजब हो गया, आज गांधी जी बहुत थक गए हैं। उन्होंने मुझे कहा कि मेरे लिए घोड़े की व्यवस्था कर। बोले, अच्छा चल मेरे साथ।
उसी दिन शाम को वो नेताजी और मैं दोनों, अब बात समझ लेना आप, अच्छी लगे तो आशीर्वाद देना, मैं उस नेताजी को लेकर के महात्मा गांधी की मूर्ति के पास गया और बोला, बापू प्रणाम, आपके लिए घोड़े की व्यवस्था करने गया था। बोले, मूर्ख, मैंने तुझे घोड़े लाने के लिए कहा और तू किसको लेके आ गया? गधे को लेके आ गया। किसको? तो आज की स्थिति में गांधी जी के जो भक्त हैं वो घोड़े नहीं रहे, उन्होंने पूरी स्थिति, और इसी कारण से आज गांधी का नाम क्या हो गया है? बदनाम हो गया है। और लोग न मालूम कौन कहां का है, कौन विदेश का है, और यहां आके सब गांधी बनने जा रहे हैं। आइए मैं एक व्यंग कविता आपको सुनाता हूं, आपकी आज्ञा है, गुरुदेव का तो आदेश हो गया, सुन लीजिए आप। एक व्यंग देखिए आप। जब से आजादी मिली है हम सब वोट डालने जाते हैं। क्या डालने जाते हैं? वोट। मैं भी चुनाव में खड़ा हुआ, मेरी क्या स्थिति हुई, उसके बाद आज तक चुनाव में खड़ा नहीं हुआ। एक व्यंग देखिए आप, अपनी ही भाषा में बात कर रहा हूं मैं आपसे। चुनाव निपटिया, समाप्त हुए, चुनाव निपटिया, जब हार जीत का समाचार निकलवा लग गया, किन्ने कितना वोट मिला, लोग बाग बोलवा लग गया, तो मने मालूम पड़ी कि मने कोरा इन मीन 3 वोट ही मिला। कितने? तो मने मालूम पड़ी कि मने केवल इन मीन 3 वोट ही मिला। ये समाचार दोपहर तक मारे घरे भी पहुंच गया। संध्या का जब मैं घरे गयो तो देखूं वहां टाबर टूबरा की मां घर की चौखट पर ही चंडी को रूप बनाया खड़ी ही। मैंने देखता ही रपट के मारी गर्दन पकड़ लेती और हिलाती तक की बोली, थे मारी साथ फेर दगो की दो, साच बोलो उ तीजो वोट थाने कौन दी दो। जिसको समझ में आ गई वो हंस लिए, जिसको समझ में नहीं आई वो कल हंसेंगे। थे मारी साथ फेर दगो की दो, साच बोलो वो तीसरो वोट थाने कौन दी दो, नहीं तो बार बेलन सु जुड़सू चिमटा सु आरती करसू। मैं कहो निजे ने तो ठिकाने कर, यान क्या झाके है लोगा का राज में लोग, ये लोग ने लोग समझ एक वोट मुफ्त को ना कहे। बात उन्हें समझाई, उन्हें घनी पसंद आई। बोली कहा लुगाया को राज हो तो एक वोट मने भी यान को यान मुफ्त के अंदर मिल जातो। हर्ष हर्ष। श्रमण भगवान महावीर स्वामी के चरणों में कोटि कोटि नमन वंदन। श्रमण सूर्य दिव्य विभूति वरिष्ठ प्रवक्तक श्रद्धे गुरुदेव मरुधर केसरी श्री मिश्री लाल जी महाराज, लोकमान्य राष्ट्रीय शेरे राजस्थान वरिष्ठ प्रवक्तक पूज्य गुरुदेव श्री रूपचंद जी महाराज, मरुधरा भूषण शासन गौरव प्रवक्तक पूज्य गुरुदेव श्री सुकनमल जी महाराज के चरणों में भाव भरा वंदन नमन। अत्र विराजित तपस्वी रतन ज्योतिष साम्राट उप प्रवक्तक पूज्य गुरुदेव श्री अमृत मुनि जी महाराज, बाल योगी श्री अखिलेश मुनि जी महाराज, डॉक्टर श्री वरुण मुनि जी महाराज आदि ताना तीन को त्रिबार वंदन। श्री मरुधर के श्री धर्म दरबार में पधारे हुए सभी धर्मनिष्ठ सुश्रावक सुश्राविका को श्री मरुधर के श्री रूप सुकन अमृत चातुर्मास वयावत समिति तमिलनाडु की ओर से हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। श्री SS जैन संस्कार मंच सौकारपेट से गुरुदर्शन यात्रा के लिए पधारे हैं। मैं आमंत्रित करता हूं श्री प्रवीण जी नार,
पूर्व अध्यक्ष और श्री संस्कार मंच के 23वें स्थापना दिवस के उपलक्ष्य में आयोजित गुरु दर्शन यात्रा के निमित्त पर श्री एस जैन संस्कार मंच द्वारा श्री संघ आलवारपेट छात्रमास में शुभ खाता में 2100 रुपया दिए। बहुत बहुत धन्यवाद। श्रमण भगवान महावीर स्वामी के चरण कमलों में वंदन करने के पश्चात सिद्धार्थ गुरुदेव के चरणों में वंदन, अत्र विराजित परम पूज्य श्री अमृत मुनि जी महाराज साहब आदि ठाणा के चरणों में वंदन। सभी को सादर जय जिनेन्द्र। क्रिकेट के इतिहास में एक अद्भुत घटना घटी। सचिन तेंदुलकर बैटिंग कर रहा था, उसी समय ब्रैड हॉग जो एक नया प्लेयर आया था, उसने सचिन तेंदुलकर को क्लीन बोल्ड कर दिया। मैच के बाद जब ब्रैड हॉग उस बॉल पर सचिन तेंदुलकर का साइन लेने गया कि मैंने एक बहुत बड़ा अचीवमेंट किया है, बहुत बड़े खिलाड़ी को मैंने आउट किया है, तो वह बॉल लेकर के सचिन तेंदुलकर के पास उसका ऑटोग्राफ लेने जाता है। सचिन तेंदुलकर उस बॉल पे ऑटोग्राफ करते हैं और साथ में एक वाक्य लिखते हैं कि ये जो आज घटना घटी है, ये घटना दोबारा कभी तुम्हारे जीवन में घटित नहीं होगी। और उसके बाद कई सालों तक सचिन तेंदुलकर क्रिकेट खेलते रहे। ब्रैड हॉग का कई बार उन्होंने सामना किया, लेकिन एक बार भी ब्रैड हॉग वापस सचिन तेंदुलकर को आउट नहीं कर सके। ये होती है व्यक्ति के अंदर दृढ़ निश्चय की शक्ति। अगर व्यक्ति एक बार कोई चीज ठान लेता है कि यह कार्य मुझे करना है, तो उसके अंदर इतनी शक्ति अपने आप आ जाती है कि वह उस कार्य को करने में सक्षम हो जाता है। और युवाओं की इसी शक्ति को वर्ष 2000 में पहचाना था परम पूज्य गुरुदेव श्री सिद्धार्थ मुनि जी महाराज साहब ने, और गठन किया था श्री एस जैन संस्कार मंच का। गठन के समय संस्कार मंच का उद्देश्य मात्र यही था कि प्रति रविवार को सब युवा एक साथ मिलकर के सामूहिक सामायिक करें और साहूकारपेट संघ के तत्वावधान में जो भी चातुर्मास की आदि गतिविधियां होती है, उन सभी गतिविधियों में सहयोग दे। लेकिन कहते हैं कि युवाओं में जोश बहुत होता है और नए कार्य करने के लिए उत्सुकता होती है। यंगस्टर्स का माइंड हमेशा इनोवेटिव होता है, वो एक भेड़ चाल में नहीं चलते, कुछ न कुछ नया करने की हमेशा सोचते रहते हैं। तो जैसे जैसे संस्कार मंच आगे बढ़ता गया, संस्कार मंच की गतिविधियां आगे बढ़ती गई। संस्कार मंच न सिर्फ सामायिक तक सीमित रहा, बल्कि प्रतिदिन अन्नदान जो कि लगभग 14 वर्षों से चल रहा है, 5 वर्षों से लगभग जीव दया का कार्यक्रम चल रहा है, मानव सेवा, ब्लड कैंप, जरूरत पड़ी तो वैक्सीनेशन कैंप, ब्लैंकेट डिस्ट्रीब्यूशन इत्यादि अनेक जरूरत समय की मांग के अनुसार संस्कार मंच ने अपनी गतिविधियों को बढ़ाया। और आज संस्कार मंच 22 साल पूर्ण करके 23वें साल में पदार्पण कर रहा है। और उसी के उपलक्ष्य में सभी गुरु भगवंतों के प्रति संस्कार मंच अपनी कृतज्ञता व्यक्त करता हुआ आज गुरु दर्शन यात्रा का यह जो आयोजन किया है, उसमें सभी गुरु भगवंतों के चरणों में हम लोग, हमारी संस्कार मंच की पूरी टीम की तरफ से जो भी सदस्य यहाँ पर उपस्थित है, उन सभी की तरफ से गुरु भगवंतों के चरणों में अपने वंदना अर्पित करते हैं। और सभी गुरु भगवंतों का आशीर्वाद इसी तरह संस्कार मंच पर सदैव बरसता रहेगा और संस्कार मंच इसी तरह से आध्यात्म की ओर में सामाजिक धार्मिक कार्य करता हुआ आगे बढ़ता रहेगा। इसी मंगल कामना के साथ जय जिनेन्द्र, जय महावीर। हर्ष 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 हर्ष। इसी श्रृंखला में आज एक तपस्या के भी प्रत्याख्यान है। श्रीमती कांताबाई जी, धर्मपत्नी गौतम चंद जी गढ़वानी, ऐनावरम से आप पधारे हैं। आज आपके 7 की तपस्या है और 7 + 1 8 की कुल पचखान आज होंगे। श्रीमती कांताबाई जी गढ़वानी, ऐनावरम, आगे पधारें। आपके 8 की तपस्या के पचखान। और समिति के श्रावक की अगर कोई बहनें आई हो तो वो आगे आ जाए, तपस्वी बहन का अभिनंदन करना है। 8 उपवास के पचकान 8 दूनी 16 18 संबत्तम अष्टम बाणम अणत्ता बगड़म सहस्रा कारणम महत्रा कारणम सहस्रवत्या कारणम दिन का तिव्या रात का 24 तस वंते पड़िकमामी निंदामी गरियामी अप्पाणम बोसरे बोसरे। तपस्या करने वालों को, 28 की तपस्या करने वालों को अनुमोदना 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 बारंबार, अनुमोदना 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 बारंबार।
तपस्या करने वालों को, तपस्या करने वालों को। इसी बीच गौतम चंद जी गोठी, जो अपने मदन लाल साहब गोठी के सुपुत्र हैं, पिछले 55 दिनों से इनकी मौन की तपस्या है, उपवास की नहीं, मौन के साथ ये आगे बढ़ रहे हैं। तो आज इनके 55वें मौन के पचखान, कृपया आगे पधारें। समापन है इनका। गौतम चंद जी गोठी, आज इनके मौन का समापन है, तो आपके 55 दिन की मौन के पचखान बाद में बोलने क्या बजे 55 की। आओ आगे आओ। ₹2100 शुभ खाता में विजय राजी गौतम चंद जी दुगट सौकारपेट से मरुदर में कुराया गाँव। बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ, 55 उपवास 55 के मौन के पचखान आपके धारणा प्रमाणे तस्वंते परिक्रमा में निंदा में गरिया में अपाणम वोसरे वोसरे वोसरे। हाँ, खड़ा रहो। अनुमोदना 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 बारंबार। आनंद सा मरलेचा, नौरतन मर्जी, नौरतन मलसा लोढ़ा, महावीर चंद सा कठारिया आगे आ जाए, महावीर चंद सा शिश्री मार्ग भी आगे आ जाए। और 55 दिन की मौन की आराधना करने वाले गौतम चंद सा गोठी, महावीर चंद सा कटारिया आगे पधारे। गौतम चंद जी ललवाणी, हर्ष हर्ष जय जय। मौन की तपस्या करने वालों को धन्यवाद, मौन की आराधना करने वालों को धन्यवाद। सूचना जैसे कि आपको पहले दी गई है, अगले रविवार को शरद पूर्णिमा है। उस शरद पूर्णिमा के प्रसंग पर नमो थूणम का सजोड़े जाप होगा, उसका रजिस्ट्रेशन भी किया जाएगा। तो समय पर आने का लक्ष्य रखें और सभी अपना नाम भी दर्ज करवाने का भाव रखें। नमो थूणम का सजोड़े जाप होगा। ड्रेस पुरुष सफेद ड्रेस में और महिलाएं चुनरी के अंदर आने का लक्ष्य रखें। यहाँ पधारे हुए सभी के लिए गुरु प्रसादी रखी गई है। श्री मरुदर केसरी रूप सुकन अमृत चातुर्मास वयावत समिति तमिलनाडु को अतिथि सत्कार का लाभ प्रदान कर रहे हैं। प्रत्येक रविवार को प्रवचन दोपहर 2 से 4 बजे। आप सभी से विनम्र निवेदन है, आप सब परिवार पधार कर गुरु दर्शन जिनवानी श्रवण कर अतिथि सत्कार का लाभ देकर अनुग्रहित करें। मंगल पाठ। चत्तारि मंगलम अरिहंता मंगलम सिद्धा मंगलम सौ मंगलम केवली पणत्ते दमो मंगलम। चत्तारि लोगुत्तमा अरिहंता लोगुत्तमा सिद्धा लोगुत्तमा सौ लोगुत्तमा केवली पणत्ते दमो लोगुत्तमा। चत्तारि शरणं पहुज्जामि अरिहंते शरणं पहुज्जामि सिद्धे शरणं पहुज्जामि सौ शरणं पहुज्जामि केवली पणत्ते धम्मं शरणं पहुज्जामि। ये चार शरण दुख हरण जगत में तन शरणा कोई होगा जो भव्य प्राणी करे आराधन उसका उसका सदा ही मंगल होगा। श्री अमृत बसे लब कितना भंडार। श्री गुरु गौतम समरिये मन वंचित फलदाता। भावे बावन भाविये भावे दीजे दान। भावे धर्म राधिये भावे केवल ज्ञान। भावे पद निर्माण तेको तो आया एनम पाया एनम करेमि वंदामि नमन सामि सकारेमि सम्मानेमि कल्याण मंगलम देव्यम चेव्यम प्रजा स्वामी मठेन वंदामि तेको तो आया एनम पाया एनम करेमि वंदामि नमन सामि सकारेमि सम्मानेमि कल्याणं मंगलम देव्यम चेव्यम प्रजा स्वामी मठेन वंदामि।
तिकुतो आयायिनं पायायिनं करेमि वन्दामि नमन्सामि सत्कारेमि सम्मानेमि कल्याणं मंगलम देव्यम चेव्यम पजासामि मतेन। आओ पूज्य गुरुदेव जी महाराज साहब, हम सब आपके ज्ञान दर्शन चारित्र तप एवं संयम यात्रा की तथा आपके आहार विहार की एवं तपोमय शरीर की सुख साता पूछते हुए मंगल कामना करते हैं। आपके प्रति कोई अविनय आशा न हुई हो तो विनय पूर्वक हाथ जोड़कर बारंबार क्षमा चाहते हैं। बोलिए श्रमण भगवान महावीर स्वामी की। मर्दर के श्री वरिष्ठ प्रवर्तक पूज्य गुरुदेव 1008 श्री मिश्रीमल जी महाराज साहब की। लोकमान्य राष्ट्रीय संत वरिष्ठ प्रवर्तक पूज्य गुरुदेव श्री रूपचंद जी महाराज साहब की। पूज्य आचार्य सम्राट डॉक्टर श्री शिवमुनि जी महाराज साहब की। पूज्य युवाचार्य प्रवर श्री महेंद्र ऋषि जी महाराज साहब की। मरुधरा भूषण प्रवर्तक पूज्य गुरुदेव श्री सुकन मुनि जी महाराज साहब की। ज्योतिष साम्राट श्रमण संघ उप प्रवर्तक पूज्य गुरुदेव श्री अमृत मुनि जी महाराज साहब की। बाल योगी पूज्य गुरुदेव श्री अखिलेश मुनि जी महाराज साहब की। पूज्य गुरुदेव डॉक्टर श्री वरुण मुनि जी महाराज साहब की। जैन धर्म की, श्रमण संघ की, अहिंसा परमो धर्म की, आज के आनंद की। यहाँ पधारे हुए सभी के लिए गुरु प्रसादी रखी गई है। श्री मरुधर के श्री रूप सुकन अमृत चातुर्मास वयावत समिति तमिलनाडु को अतिथि सत्कार का लाभ प्रदान करें। जरूर जरूर गौतम प्रसादी लेके पधारे।